Hello, friends. Welcome to Zenith Educational Academy again. Actually, in this video, I would like to discuss about sentence because one of my students requested me that, sir, please make a video or lecture on sentences because I have so confusion about the structure and function of it. अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे प्रीपोजिशंस पे, विल डिस्कस सम अदर प्रीपोजिशंस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बीच में हम उसको पोज कर रहे हैं बिकॉज एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे आज रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज फोकस ऑन दिस सेंटेंस एंड इट्स फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स बिकॉज वी हैव सो कंफ्यूजन. सो इसीलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सेंटेंस. इफ वी डिस्कस व्हाट इज सेंटेंस, everybody knows very well sentence is a group of words having subject and predicate. Yes, so we will not discuss about the structure of sentence and function of sentences, but also we will focus on the different aspects of sentences. So it means we have to divide sentence into two broad categories, like sentence or sentences according to functions. If we talk about according to functions of sentences, so in English language we have four functions of our sentences. Function number one is declarative sentence, or you can say assertive sentence, the sentence and with the period, or you can say full stop, and it talks about statement. Declarative or assertive sentence making statements, and these always end with a full stop, or you can say period. Statement may be positive or negative. For example, if I say I read a book, it is a positive statement. If I say I do not read a book, it is a negative statement, but both sentences are declarative. Next function is interrogative, and we know very well interrogative means asking questions, and each interrogative sentence ends with the question mark that we have. So we have two types of interrogative questions, interrogative sentences. One is direct, second is indirect. We will discuss in detail. Next is imperative. Third function of sentence is imperative. And imperative means instructions, order, request, suggestions, views, opinions, etc. And imperative sentence may be end with the full stop, period, or sometime use yes imperative point, or you can say imperative mark. Last function of the sentence is exclamatory sentence, and exclamatory sentence explained with exclamations, sometime happy, sometimes sad. You can say it is actually based on emotions or feelings of the person. Yes, an exclamatory sentence always end with exclamatory point. Understood? We will discuss different kinds of sentences comes under the umbrella of exclamatory sentence. So based on the functions of sentences, we can say we have four types of sentences: declarative, interrogative, imperative, and exclamatory. Next, if we discuss about sentences according to the structure, do not confuse, functions and structures are different. Structure के according अगर हम बात करें तो we have again four types of structures of a sentence. Number one is simple sentence. Number two is compound sentence. Simple sentence means do not use just any kind of the conjunction to add it two or more than two sentences. Simple sentence means you have subject, verb, and object. Just sometimes we have only subject and verb, sometimes we have subject, verb, direct object, and indirect object. But in compound sentence, it means we have to use conjunctions, coordinating conjunctions to aid two independent sentences or two independent clauses. सिंपल सेंटेंस में क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है. फॉर एग्जाम्पल ही स्लीप्स, ये क्या सिंपल सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ लेटर, सिंपल सेंटेंस है. Compound sentence means in the compound sentence
we are adding two sentences or two independent clauses with the help of coordinating conjunctions. For example, I read a book and purchase it from market. ठीक है, इट मीन्स अब हमने इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड को यूज किया जो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन कर रहा है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स मीन्स नाउ वी विल यूज द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. Yes, for example, I read a book which was very interesting about a particular topic. ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. Next is compound complex, or you can say complex compound sentence. In this sentence, we will use both conjunctions, coordinating as well as subordinating conjunctions. And in this sentence, we have one independent clause and two independent clause and one is dependent clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, एक डिपेंडेंट क्लोज होगा. इंडिपेंडेंट मीन्स प्रिंसिपल क्लोज हैज इट्स स्पेसिफिक मीनिंग, but dependent, or you can say subordinate clause, means it does not have independent meaning. It is always based on the independent or the principal clause. So complex compound means, suppose sentence is, yes, I write a book and I read it, which is very famous about the plays of Shakespeare's. So ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज है. यस, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, फिर दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज है, बट जो थर्ड क्लोज होगा वो होगा डिपेंडेंट क्लोज. सो वी हैव डिस्कस्ड हियर functions and structure of the sentences. Now we will go to discuss one by one of each category of sentences about functions and structures. Okay, so friends, come to the discussion about the structure and function of the sentences. Now I would like to begin the points regarding to the functions of the sentences. अब हम बात करें functions of the sentences. जैसे कि मैंने brief में बताया, we have four functions of a sentence in English language: declarative, interrogative, imperative, and exclamatory. So number one is declarative sentence. It means making statements. डिक्लेरेटिव सेंटेंस या कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस, इसका मेन फंक्शन है मेकिंग स्टेटमेंट्स, एंड स्टेटमेंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. यस, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्ड्स वी हैव यूज्ड टू मेक इट, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. एग्जांपल्स वी हैव हियर. यू कैन से योर हेयर लुक्स नाइस. So definitely we do not use any negative particle like not, no, never, seldom. Yes, so your hair looks nice. It is a positive statement. You can say it is a assertive, positive, affirmative statement. There is no negative. If we want to change it in the negative statement, we must have to use a negative marker or negation, like your hair does not. Yes, because looks, that is used in the present tense. In the word look, we have added s because it tells the sentence is in present tense. Present tense, so we have used does at the place of s. Your hair does not look nice. अब look से देखिए s remove कर दिया because we use the first form of the verb in the present tense, that is does. So your hair does not look nice. It is negative statement because it is a negation. Negative statement means negative sentence it is. Sam is a doctor. Yes, it is a positive because there is a positivity, there is no negation. If I say Sam is not a doctor, now we have used the negative particle negation word, negative word not to change positive statement into negative statement. So Sam is not a doctor, it becomes a negative statement. So it is very easy just to discuss about positive versus negative statements about declarative or assertive sentence. If I say I am a teacher, so it is a positive. If I say I am not a teacher, it is a negative statement. Yes, it is very easy. Next is interrogative, and interrogative means asking questions. Very easy it is because we use the question mark at the end of the sentence in interrogative sentence. But we have two types of questions, or we can say two types of interrogative sentences.
Number one is yes or no questions. Number two is relative, or you can say WH family questions. Yes, no, it means we have used the verbs, इन्हें कहते हैं auxiliary verb, or you can say helping verbs. जो B है, B is a kind of auxiliary verb जिसमें आता है is, are, am, was and were. Next is have, H-A-V-E, have. It is again a kind of auxiliary verb. इसमें आता है have, has and had. Next is do. Do is again a kind of auxiliary verb जिसमें डिस्कस करते हैं do, does and did. Okay? जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है. नेक्स्ट इज WH family words. We know very well, ये कॉमन है. It means when a sentence begin with a WH family words like what, why, when, how, where, etc. Okay? So हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका. If we use auxiliary verbs be, have and do, so स्ट्रक्चर क्या होगा उसका? Like we have used the auxiliary verbs in the beginning of sentence, then subject, then verb, then object, then question mark. It is the structure of an interrogative sentence when use auxiliary verb be, have and do. Sentence is, देखिए यहाँ पे is he writing a letter question mark. इसमें देख सकते हैं is जो है ये auxiliary verb है जो be form में आता है. It means it used in the beginning of sentence, or you can say used before a subject. इसमें सब्जेक्ट ही है लेकिन उससे पहले हमने एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया is, तो इससे आइडेंटिफाई हो गया whenever use auxiliary verb in the beginning of sentence or before the verb, it means the sentence is in interrogative function. तो is he writing a letter और क्वेश्चन मार्क भी है. सेकेंड आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होगा बिकॉज इट आस्क्ड क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज आर यू कमिंग टुडे. अगेन देख सकते हैं आर जो है इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब जो बी फॉर्म में आता है. इसको बिगिनिंग में यूज किया बिफोर सब्जेक्ट यू और बिफोर सेंटेंस, और राइटिंग लेटर एंड आल्सो आई यूज्ड द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इट. द क्वेश्चन मार्क भी यूज किया गया है और ऑक्सिलरी वर्ब बिगिनिंग में भी यूज किया गया है. इट इज अगेन अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज हैव यू रिटन अ बुक क्वेश्चन मार्क. अब जो हैव है इट इज अगेन अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. अभी जो मैंने बताया हैव, हैज, हैड, तीन वर्ब इसमें आते हैं इस कैटेगरी में. अब इसमें क्या हैव यू दैट इज सब्जेक्ट उससे पहले यूज किया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है व्हेनेवर यूज हैज, हैव, हैड. ये इसमें मेन वर्ब जो होता है ऑलवेज यूज्ड इन थर्ड फॉर्म. ठीक है, जब भी हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ हैज, हैव, हैड. ठीक है, तो रिटन अ बुक क्वेश्चन मार्क. हैज ही रीच्ड होम. अब देखिए हैज जो है अगेन इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. उसका आगे सब्जेक्ट ही है, फिर रीच्ड दैट इज द थर्ड फॉर्म. V2 and V3 सेम एंड होम इज द यस ऑब्जेक्ट हियर एंड क्वेश्चन मार्क. हैड दे टेकन मनी क्वेश्चन मार्क. यस सेम इज देयर. नेक्स्ट इज डू. अब देखते हैं डू वाले में जो डू, डज, डिड जो थ्री फॉर्म्स यूज होती हैं टू मेक अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब डू यू नो मी. अब इसमें डू यू नो मी में डू, डज ये होते हैं यूज ऑलवेज फॉर द प्रेजेंट टेंस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, और जहां डिड यूज होता है वहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. ठीक है, तो डू यू नो मी, यू नो अगेन यू कैन से डू जो है यूज बिफोर द सब्जेक्ट दैट इज यू एंड बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड आल्सो क्वेश्चन मार्क. इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. फिर डज ही, शी, जॉन. बिकॉज डज जो है इट कम्स विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, she, it or name of any person. Does he read a book? Does she read a book? Does John read a book question mark. That is again a kind of interrogative sentence. क्योंकि हमने does जो है सब्जेक्ट से पहले यूज किया है और बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस यूज किया है. इसी तरीके से do देखते हैं. Do I talk to you question mark. फिर do जो है it is used for the जो सब्जेक्ट जब होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और कैसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल. यू के साथ डू आएगा, आई के साथ डू आएगा, दे के साथ डू आएगा. लेकिन ही, शी, इट या नेम किसी का उसके साथ डज आता है. ठीक है, बिकॉज दे आर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. अब देखिए यहाँ पे डिड वी डिस्क्राइब अ टॉपिक क्वेश्चन मार्क. अब डिड जो है ये बताता है कि वर्ब जो था वो क्या है सेकंड फॉर्म में था. यस, या थर्ड फॉर्म में था. यस, बिकॉज डिस्क्राइब it is a main verb that comes in the first form the verb here because
हमने सेकेंड फॉर्म इसकी ले ली डिड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। तो और ये देखिए सब्जेक्ट से पहले है वी जो है सब्जेक्ट है जो उससे पहले आ रहा है। डिड appears before subject in the beginning of sentence and also use question mark at the end of sentence। सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क भी दिया गया, इसीलिए इन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इसे कहते हैं यस नो क्वेश्चंस, या यू कह सकते हैं यूज बी हैव डू ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब हो गया कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हम किसी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज कर रहे हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, या कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है लाइक विल, शेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, अगर ये बिगिनिंग में आ रहे हैं और इनके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है, दे आर ऑलवेज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इफ आई से विल आई टीच यू क्वेश्चन मार्क, तो विल देखिए हमने आई सब्जेक्ट से पहले यूज किया, विल आई टीच यू, देखिए यहां पे सेंटेंस है विल आई टीच यू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें विल जो है यस यूज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट क्या है आई है, एंड इट टॉक्स अबाउट अ फ्यूचर, क्योंकि विल जो है फ्यूचर टेंस बताती है, विल एंड शेल, इसलिए हमने विल को बिगिनिंग में यूज किया। द क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज इन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। यस टीच इज अ मैन वर्ब, यू इज अगेन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम WH फैमिली की। यूज WH क्लास ऑफ वर्ड्स की। WH क्लास ऑफ वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, रीड इट केयरफुली हियर, कि WH फैमिली वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी इन सम सेंटेंसेस वी डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, डू नॉट फॉरगेट इट इफ यू वांट टू मेक अ इंटीग्रेटेड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ WH क्लास ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले अगर कोई WH फैमिली वर्ड होगा, उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा, वो चाहे इज हो, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, शेल, कैन, कुड, वुड, शुड, कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, वो चाहे मॉडर्न हो या कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब हो। उसके बाद जो है वर्ब आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, अब देखिए व्हाट जो है ये क्या है, WH क्लास ऑफ वर्ड है, ठीक है। आर क्या है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और यू क्या है, ये सब्जेक्ट है, और डूइंग क्या है, ये मेन वर्ब है, और इसके आगे यूज किया क्वेश्चन मार्क। तो इट इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सेंटेंस जो WH फैमिली से बना है। नेक्स्ट इज हु इज कमिंग टुडे। अब हु जो है अगेन इट इज अ काइंड ऑफ WH क्लास वर्ड है। उसके बाद देखिए हमने इस जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है, फिर मेन वर्ब कमिंग, फिर टुडे, यस दैट इज एडवर्ब एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए अगेन इट इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सेंटेंस। फिर है व्हाट डू यू मीन, व्हाट देखिए अगेन इट इज अ काइंड ऑफ यस काइंड ऑफ WH फैमिली वर्ड्स। अब इसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब हमने डू यूज किया है, जो अभी मैंने यूज किया था यहाँ पे। यस अगर यस नो क्वेश्चंस हो तब तो डू बिगिनिंग में आएगा सेंटेंस के। जब आप WH फैमिली से बनाएंगे क्वेश्चन तो वो डू, डज, डिड जितना भी होगा वो WH वर्ड के बाद ही आएगा। जैसा लिखा ना व्हाट डू यू मीन, तो व्हाट पहले यूज किया, उसके बाद डू यूज किया ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, क्वेश्चन मार्क। लिखा हाउ डू यू नो इट, हाउ जो है अगेन इट इज अ काइंड ऑफ WH फैमिली वर्ड, उसके बाद डू ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। लिखा व्हेन डिड यू कम, व्हेन इज अगेन अ काइंड ऑफ WH क्लास ऑफ वर्ड। उसके बाद देखिए हमने डिड यूज किया है, इट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यस पास्ट टेंस। व्हेन डिड यू कम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज वेयर आर यू फ्रॉम। अब देखिए वेयर जो है अगेन इट इज अ काइंड ऑफ WH क्लास ऑफ वर्ड्स, और इसके आगे आर जो है हमने क्या यूज किया, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फ्रॉम दैट इज अ प्रीपोजिशन एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज व्हाई आर यू स्पीकिंग हियर, सो व्हाई अगेन इट इज अ काइंड ऑफ WH फैमिली वर्ड। उसके बाद देखिए यूज किया हमने एक ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, हियर इज एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो इट मींस वी नो वेरी वेल कि इंटीग्रेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चंस, एक होता है रिलेटिव क्वेश्चंस। जो ऑक्सिलरी वर्ब से इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनेंगे उनका आंसर होता है यस और नो। सपोज इफ आई से एम आई अ टीचर, तो इसका सिर्फ आंसर यस या नो हो सकता है, बट डू नॉट डिटेल, बट नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल्स, ठीक है, आई एम टीचर और नॉट। इट मींस सेकंड इज दैट इफ वी वांट टू मेक अ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ WH क्लास ऑफ वर्ड्स, तो ये क्वेश्चंस कहते हैं डिटेल में इनके आंसर दिए जाते हैं।
Yes, give the answers and details of these questions. But important is that how to make the questions with the help of WH family words. सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा. So I hope you understood declarative sentence and interrogative sentence. So hello friends, now we will move to the next function of sentence, that is imperative. And we know very well imperative sentences are used commonly in our discussion. In daily, we have used so many kinds of imperative sentences for command, order, request, suggestion, views, opinions, inquiry, instructions, so many things we have used here. Yes, aspects of imperative sentence like instructions, suggestions, so many things we have. But keep in mind, imperative sentence always begin with a verb. If there is no subject in imperative sentence, it means the sentence always begin with verb. Verb may be auxiliary verb or main verb. Imperative sentence may be positive or negative. ये दोनों हो सकते हैं. Imperative sentence positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है, just like declarative sentence. But keep in mind, ये sentence जो होते हैं imperative sentence always begin with the verb. Verb main verb भी हो सकता है या auxiliary verb हो सकता है. ठीक है, जैसे sentence है do your work. अब sentence कहाँ स्टार्ट हो रहा है? do से. ठीक है, डू योर वर्क. यहां पे क्या है? ऑर्डर है, कमांड दी जा रही है. दैट्स व्हाई आई रोट हियर कमांड लाइक प्लीज डू योर वर्क. नाउ वी हैव एडेड प्लीज. यू नो वेरी वेल कि प्लीज जो है वो रिक्वेस्ट के लिए होती है, तो प्लीज डू योर वर्क. अब यहां पे रिक्वेस्ट की जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट लाफ एट द पुअर मैन. अब यहां अगेन यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि इट इज अ नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस because I used negative particle not here after the auxiliary verb, that is do. तो do not laugh at the poor man. अब इसमें क्या है? इसमें एडवाइस दी जा रही है. एंड कीप इट माइंड, एडवाइस इज ऑलवेज गिवन बाय एल्डर्स. जो आपके बड़े होते हैं वही आपको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डू हार्ड वर्क अनलेस पास द एग्जाम. अब यहां पे क्या सजेशन दिया जा रहा है? Just somebody is giving suggestions to someone, do hard work unless they qualify or pass the exam. Next is don't play with him. Yes, don't play with him. अब देखिए don't, yeah, that is the contraction of do not. उसका शॉर्ट फॉर्म में don't. अभी मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है. डोंट प्ले विद हिम, बट यहाँ पे ऑर्डर है. क्या है? ऑर्डर या कह सकते हैं कमांड दी गई है. ठीक है, कांट बिलीव इट. Yes, again, yes, can't, that is contraction of cannot. Cannot का can't believe it. So what happens? Again, there is, you know, we can say there is advice, there is the order, command, something else. There is not feeling good because of imperative forms. So it's an imperative mood भी कहते हैं. Yes, keep in mind, imperative sentences based on the imperative mood, because sometimes mood is in order, sometimes mood in request, sometimes in just feeling of the instructions, request, something else. So imperative sentence, you know, if subject इसमें क्या hidden होता है? Imperative sentences में subject क्या होता है? Hidden होता है. Subject जो होता है always कौन सा होता है? You. Keep it in mind. You जो होता है imperative sentence में, जो subject होता है वो you होता है, but इसको लिखते नहीं है. It begins with the verb. हम कह सकते थे yes, you do your work. Yes, please, yes, do your work, and you please, you can say you do not laugh at the poor man. Yes, you do your hard work. Yes, so many things. Do you know it? Yes. So it means जो इसका सब्जेक्ट होता है imperative सेंटेंस में वो ऑलवेज यू होता है, लेकिन इसको हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ मूड. इंग्लिश में मूड डिफरेंट काइंड्स होते हैं. इंपरेटिव मूड होता है, एप्टेटिव मूड होता है, कोऑर्डिनेटिव मूड होता है, सब्जेक्टिव मूड होता है. लेकिन यह सिर्फ इंपरेटिव की बात हो रही है बिकॉज ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, इंक्वायरी, इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा. Okay, friends, come to the next sentence, that is called exclamatory sentence. We have discussed declarative sentence or assertive sentence, imperative sentence, and interrogative sentence. Now the last sentence based on the function of sentence 8, exclamatory form.
तो exclamatory means when we are discussing about the exclamation or exclaimed with joy or sorrow. Yes, so it means when we are discussing with somebody with amazing feelings, emotions, surprise, congratulate, so many things we have in which we have applied the exclamation. It means we express our desires and thoughts, wishes and feelings with somebody. That is called exclamatory sentence. And exclamatory sentence always used a exclamatory point, that is the symbol of it. Yes, an exclamatory point, or you can say exclamatory mark or exclamatory symbol in a sentence. It may be used in the beginning or it may be used at the end. But keep in mind, if it is used after the exclamatory word like hurrah, bravo and alas, अगर आपने exclamatory symbol हुर्रा के बाद यूज किया, लाइक दैट इज HURRAH एन exclamatory mark, तो इसके बाद जो वर्ड लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद, पॉइंट के बाद, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा. ठीक है, जैसे हुर्रा वी, तो वी का डब्ल्यू कैपिटल, वी वन द मैच. यस, एग्जांपल इज, इट मींस हाउ कोल्ड इट इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क. सो इट मींस ऐसा नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विथ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, लेकिन जैसे हुर्रा है, एलास है, ब्रावो है. हुर्रा किसके, हैप्पीनेस के लिए यूज होता है, एलास होता है सैडनेस के लिए, एंड ब्रावो इज फॉर स्ट्रेंथ. ठीक है, ऐसा नहीं है, बट समटाइम वी यूज द WH क्लास ऑफ वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बट स्टिल दे आर नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये मैंडेटरी है कि हम WH क्लास ऑफ वर्ड्स के बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, जैसे व्हाट इज, यस, व्हाट आर. तो इट मींस आफ्टर WH क्लास ऑफ वर्ड्स वी यूज an auxiliary verb to make an interrogative sentence. But in exclamatory में ऐसा नहीं है. In exclamatory it means we can use adjective and noun or pronoun after WH class of words. जैसे यहाँ how cold it is. अब how जो है WH class of words है, but इसके बाद हमने यूज किया cold, and cold is adjective but not auxiliary verb. अब auxiliary verb जो is है यहाँ पे, that is a main verb. अब यहाँ पे main verb हो गया है. ऑक्सिलरी मीन्स कि सेंटेंस में एक और वर्ब है. ऑक्सिलरी कब बनता है? जब हमारे पास सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, पहला वर्ब ऑक्सिलरी होता है, दूसरा वर्ब मेन वर्ब होता है. अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड मेन वर्ब. इसलिए यहाँ पे सिर्फ देखिए एक ही वर्ब है, इज, इसलिए इसको कहेंगे मेन वर्ब, नॉट ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, लाइक ही इज राइटिंग अ बुक. अब इसमें इज है और राइटिंग भी है, तो इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और राइटिंग है मेन वर्ब. लेकिन जब एक ही वर्ब एक सेंटेंस में है, ये ऑलवेज क्या होगा? मेन वर्ब होता है. ठीक है, तो हाउ कोल्ड इट इज, अब देखिए हाउ के बाद कोल्ड यूज किया, एडजेक्टिव है, फिर इट प्रोनाउन है, फिर इज जो है मेन वर्ब है, उसके बाद हमने यूज किया एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, अगर आपने चेंज किया हाउ इट इज कोल्ड, अब क्या हुआ? अब ये क्या है? एक स्टेटमेंट है. इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हाउ इट इज कोल्ड, बट नॉट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस कि WH क्लास वर्ड्स के बाद जस्ट आपको एक इंप्रेसिव वर्ड यूज करना है. ठीक है, जैसे कोल्ड है, हॉट है, वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है. इट मींस अट्रैक्ट और इम्प्रेस टू समबडी, तभी तो एक्सक्लेमेटरी होगा वो. यस, अट्रैक्शन, अमेजिंग, सरप्राइज. तो यहाँ पे इफ आई से हाउ इट इज कोल्ड, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, इट इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज हाउ यू हैव ग्रोन. ठीक है, अब हाउ यू हैव ग्रोन, अगेन हाउ इज यूज एज WH क्लास ऑफ वर्ड्स, और इसके बाद हमने यू प्रोनाउन यूज किया जो लिविंग है, बट इट जो है यूज फॉर द नॉन लिविंग, इसीलिए. यस, हैव ग्रोन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इट इज अगेन अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये अगर हम ये कहें हाउ ग्रोन यू हैव, तो हाउ ग्रोन यू हैव, it is not exclamatory sentence because it is not attracted or impressed to somebody because of the words. What a rude man. अब देखिए यहाँ पे what a rude man. If we are using a noun phrase, singular noun phrase, क्योंकि man यहाँ पे क्या सिंगुलर है, तो rude क्या एडजेक्टिव है, तो हम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक आर्टिकल जो है इंडेफिनिट आर्टिकल. If you are confused here regarding to the articles, please watch my video. मैंने एक आर्टिकल पे वीडियो बनाया है, डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, पजेसिव आर्टिकल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स, सब पे वीडियो बना हुआ है.
आप देख सकते हैं कि कहाँ हम डेफिनेट यूज करते हैं, कहाँ इंडेफिनिट यूज करते हैं, कहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैन जो है दैट इज अ सिंगुलर नाउन है। यस, वी कैन से मैन इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसीलिए हमने यूज किया इंडेफिनिट आर्टिकल व्हाट आर रीड मैन। इट इज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम आर्टिकल को रिमूव कर दें, लिखें व्हाट रीड मैन, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। व्हाट रीड मैन, यस इट मे बी अ स्टेटमेंट, लेकिन एक्सक्लेमेटरी नहीं है। What happens in terms of the exclamatory sentence if we're using the noun phrase, that is rude man, it is a singular noun phrase, तो इसके लिए we have used an article after WH class of words, इसलिए यहाँ पे ये wrong है। ठीक है, what a nice dress, अब अगेन देखिए what क्या WH class of words से आ आर्टिकल है, nice एडजेक्टिव है, ड्रेस क्या है, अगेन इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सो जहां भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन फ्रेज यूज करेंगे, उससे पहले या उसके कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ इट ऑलवेज यूज इंडेफिनिट आर्टिकल, दैट इज आ, क्योंकि आ जो है और एन जो आर्टिकल से वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज की जाती हैं। इसीलिए व्हाट अ नाइस ड्रेस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इफ रिमूव आ आर्टिकल हियर, व्हाट नाइस ड्रेस, अगेन इट इज नॉट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लिखा है व्हाट लवली फ्लावर्स, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि इसमें भी लवली एडजेक्टिव है एंड फ्लावर्स क्या है, नाउन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है। ठीक है, फ्लावर्स इज प्लूरल, तभी हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। आई डिस्कस्ड इन अ वीडियो कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन जो है ऑलवेज कम्स विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ये कभी प्लूरल नाउन्स के साथ नहीं आती हैं। सो यहाँ पे तभी हमने व्हाट आर लवली फ्लावर्स नहीं लिखा है। अगर हम लिखते हैं व्हाट आर लवली फ्लावर्स, एंड फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आता, इसलिए इट इज रॉन्ग। अगर आपने आर्टिकल यूज किया विद द प्लूरल वर्ड एज आर्टिकल ए और एन तो रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट लवली, लवली इज एडजेक्टिव, फ्लावर्स इज अ प्लूरल, दैट्स व्हाई आई डू नॉट यूज आर्टिकल हियर, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट फूल्स, yes, what fools, again fools is a plural word, we do not use any article। what are fools, what and fools नहीं यूज होगा। अगर आपने कहा what are fools, ये again it is incorrect। do not use any article if you are using noun, it is a plural noun just after WH class of words in exclamatory sentence। अगर आप exclamatory sentence में WH class words के बाद कोई प्लूरल नाउन फ्रेज यूज करते हैं या प्लूरल वर्ड यूज करते हैं, तब आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट इज यू आर सो काइंड। अब देखिए यहाँ पे क्या, सम टाइम व्हाट हैपेंस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम सो यूज करते हैं, बिकॉज सो इनहैंस, यस दैट, और इनहैंस द डिग्री ऑफ द वर्ड, इनहैंस द क्वालिटी ऑफ द एडजेक्टिव। ठीक है, सो यू आर सो काइंड, अब यहाँ पे देखिए इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इफ आई से यू आर काइंड, ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट। यू आर काइंड, यहाँ कोई एक्सक्लेम्ड की बात नहीं हुई, यू आर सो काइंड के हैं, इट मींस आप से इतना काइंड कोई है ही नहीं, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यू आर काइंड इट इज कॉमन, yes, but you are so kind, it means you are expressed to somebody with the appreciative word to use for somebody। he is such a nice boy, अब सच जो है अगेन यूज्ड फॉर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू एक्सक्लेम समबडी। यस, ही इज सच अ नाइस बॉय, अगर आप कहें ही इज अ नाइस बॉय और अ सच नाइस बॉय, अगर ऐसे कहें ही इज अ नाइस बॉय तो अगेन इट इज अ कॉमन, किसी के लिए भी कह सकते हैं ही इज अ नाइस बॉय। सच नाइस बॉय, बट हु इज सच नाइस बॉय यहां बताया नहीं गया है, इसीलिए इट मींस सब्जेक्ट को मिस कर दिया गया है, दैट इज नॉट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। So correct exclamatory का he is such a nice boy, exclamatory symbol। So exclamatory sentence की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि always used exclamatory point और exclamatory mark symbol। दूसरा क्या है, इन exclamatory sentence में कहीं ना कहीं उसमें exclaimed होता है, कहीं happiness होती है, कहीं sadness होती है, surprise होता है, amazing होता है, yes, wondering होता है, understood, and sometime enhance the level of the quality of a particular word, particular people or person। ठीक है, so ये है exclamatory sentence। I hope you understood very well। So we discussed it about 4 functions of the sentences, that is declarative, imperative and interrogative, and the last is exclamatory sentence। Friends, now come to the
Structure of sentences. We have discussed about the function of sentences as declarative sentence, or we can say assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. Now come to the next point regarding to the sentence is structure of it. अब हम बात करेंगे structure of sentences की. How many structures we have of a sentence? Number one is simple sentence. Yes, structure of sentence means we are using subject, verb, and object in a simple sentence. In this structure of sentences, we will discuss about clauses. Dependent clause, independent clause, or you can say principal clause and subordinate clause. Principal को हम independent भी कहते हैं और principal को main clause भी कहते हैं. Subordinate clause को हम dependent clause भी कहते हैं because it is depend on the main clause for the meaning. ठीक है. सो इसमें हम बात करें क्लोजेस की. सिंपल सेंटेंस मींस सिंपल सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विथ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज. सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लोज होता है जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, एंड इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ. ओके. सब्जेक्ट मींस doer of an action, predicate means begin from the verb to the end of sentence. तो इसमें देखते हैं हम, सपोज ही रीड्स अ बुक. ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है और इसमें सिर्फ एक ही क्लोज है, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लोज. क्लोज मींस अ क्लोज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट. एवरी क्लोज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है. प्रेडिकेट मींस कि वर्ब से लेकर के एंड तक, सेंटेंस के एंड तक, उसको पूरा कहते हैं प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मींस द सब्जेक्ट, जो नाउन है, प्रोनाउन जो फर्स्ट सेंटेंस में यूज होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट. जैसे ही यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है बिकॉज इट अकर्स टू द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस एंड इट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. ये एजेंट है. लेकिन रीड्स अ बुक, यहां से रीड से लेकर बुक तक ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट है. लेकिन एक ही एक क्लोज है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज. नेक्स्ट इज ही डज नॉट रीड अ बुक. ये तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है. ही इज अगेन अ सब्जेक्ट बिकॉज इट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन कर रहा है. डज नॉट रीड अ बुक, यहां से डज से लेकर के बुक एंड ऑफ सेंटेंस तक ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट है. और दोनों को मिला के एक ही क्लोज है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज. ठीक है. सपोज यू कैन से ही स्लीप्स. तो ही स्लीप्स अगेन इट इज अ काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड इट हैज ओनली वन क्लोज जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज. इसमें अगर एनालाइज करें, ही इज अ सब्जेक्ट और स्लीव्स जो है दैट इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मींस ये सिर्फ वर्ब भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज बिगिन विद द वर्ब. वर्ब चाहे वो मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो. सपोज इसको कहें ही इज स्लीपिंग. ठीक है. अब ही क्या सब्जेक्ट है और इज स्लीपिंग पूरा क्या है, प्रेडिकेट है, बट इट इज ओनली वन क्लोज. इसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस. अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस वी अंडरस्टूड थ्रू द वर्ड कंपाउंड मींस एडिशन, ज्वाइनिंग. अब इसमें क्या है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, विद द हेल्प ऑफ कॉमा, विद द हेल्प ऑफ कोलन. ठीक है. कंपाउंड सेंटेंस मतलब है कि हम दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन करेंगे और वो ज्वाइन कैसे होंगे, समटाइम यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समटाइम यूज कॉमा, समटाइम यूज कोलन. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से फॉर्मूला होता है, सकते हैं फेन बॉयज. ठीक है. इसका फॉर्मूला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फेन बॉयज. फेन में एफ स्टैंड फॉर, ए मींस एंड, एन मींस नीदर, बी मींस बट, ओ मींस और, वाई मींस येट एंड एस मींस सो. तो फेन बॉयज जो वर्ड है हर एक लेटर का एक फुल फॉर्म है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं. एंड इनका काम क्या है, ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस और ज्वाइन वन डिपेंडेंट, वन इंडिपेंडेंट और बोथ डिपेंडेंट क्लोजेस. ओके. अब इसमें एग्जांपल है, आई परचेस्ड अ बुक एंड रीड इट केयरफुली इन द नाइट. अब इसमें देखो दो क्लोजेस हैं. ये क्या है, आई परचेस्ड अ बुक. नंबर वन, इट इज इंडिपेंडेंट क्लोज. दूसरा क्लोज क्या है, रीड इट केयरफुली इन द नाइट. दूसरा ये हमारे पास है. सो दो, इट मींस रीड इट मींस आई रीड इट, इट स्टैंड फॉर बुक. इट जो यूज किया गया वो बुक के लिए यूज किया गया है.
और सब्जेक्ट सेम है आई, तो इसमें देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं। एक क्या है, आई बॉट और परचेस्ड अ बुक, सेकेंड क्या है, रीड इट केयरफुल इन द नाइट। अब ये दोनों क्लोजेस इंडिपेंडेंट क्लोजेस किससे ज्वाइन है, एक वर्ड यूज किया गया एंड, ए एन डी, एंड का इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसका काम है दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ना, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, शी अटेंडेड द क्लास, शी रीच्ड लेटर टू होम। अब इसमें हमने कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया, आई डू नॉट यूज एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लेकिन फिर भी इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं जो कॉमा यहां पे यूज किया गया। कॉमा हैज अ फंक्शन आल्सो टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लोज। अब कॉमा की हेल्प से हमने दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन कर दिया है, इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड मींस एडिशन और ज्वाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लोजेस, ठीक है। जैसे कंपाउंड वर्ड्स भी होता है, ठीक है, हम कंपाउंड सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट दे स्टडीड हार्ड but could not qualify the exam or entrance exam. Up they studied hard, again it is a first independent clause. Next is could not qualify the entrance exam, that is the second independent clause, but दोनों clause जो है वो but जो यहाँ पे conjunction यूज किया इसकी हेल्प से ज्वाइन है, ठीक है, इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से हमारे पास ये सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, लाइक ही गेव मी मनी yesterday so I returned it today. अब he gave me money, again it is a kind of independent clause, and second is I returned yes it today, that means I returned money, it stand for money, लेकिन ये ज्वाइन किसकी हेल्प से, सो जो है, सो एस ओ सो इट इज अ काइंड ऑफ कंजंक्शन जिसके काम क्या है, टू ज्वाइन टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लोजेस। आई वेटेड you for a long time for giving a surprise news. अब एक I waited for a long time, again it is a kind of independent clause, ये एक independent clause है। सेकेंड है for giving a surprise news, ये second independent clause है। both clauses are joined because of the, that is for, yes, because of the conjunction for। giving a surprise news ये दूसरा independent clause है, ठीक है। पहला क्या है, ही आई वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, ये पहला इंडिपेंडेंट क्लोज है। गिविंग अ सरप्राइज न्यूज इट इज अ सेकंड इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये दोनों क्लोज किसकी हेल्प से ज्वाइन है, फॉर। लास्ट इज ही हैज फीवर येट ही टेक्स बाथ। अब ही हैज फीवर क्या है, इट इज अगेन इंडिपेंडेंट क्लोज है, एंड ही टेक्स बाथ ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज है। दोनों क्लोजेज जो हैं इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, बट दे आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ येट, दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। So I hope understood ki what is simple sentence, what is compound sentences. Simple sentence do not use any conjunction, do not use comma, do not use colon. It means there is only one independent clause. यहाँ कोई दो नहीं है, दो से ज्यादा नहीं है। Compound means we have two independent clauses in each sentence and they are joined with the help of coordinating conjunction, friend wise जैसे मैंने बताया, comma and colon. Yes. Okay, so come to the third point of the structured sentences, that is complex. Yes, we have discussed simple, compound. Now come to the complex sentence. Complex sentence means it has one independent and at least one dependent clause in a sentence. Complex means it has one independent clause or principal clause or main clause and one dependent or subordinate clause. जैसे कि कंपाउंड में कहता है कि दोनों क्लोज जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बट कॉम्प्लेक्स में क्या है कि एक इंडिपेंडेंट हो, एटलीस्ट वन इज डिपेंडेंट क्लोज। कम टू द एग्जांपल्स हियर, एंड बिफोर द एग्जांपल्स आई वांट टू टेल यू इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड ये कौन से होते हैं, इफ, दैट, वेदर, ऑल्दो एंड डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स लाइक व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु एक्सेट्रा। जैसे कंपाउंड सेंटेंस में हमने यूज किया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे फॉर, एंड, बट, सो, येट, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम यूज करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक इफ, वेदर, दैट, बिकॉज एंड डब्ल्यूएच फैमिली ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस है, आई नो वेयर इज माई बैग। Yes, I know where is my
बैग। अब आप देख सकते हैं आई नो जो है इट इज अ प्रिंसिपल क्लोज, या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, या कह सकते हैं मैन क्लोज, ठीक है, बिकॉज इट हैज इट्स मीनिंग। एंड वेयर इज माई बैग, ये जो है वेयर इज माई बैग, इट इज डिपेंडेंट क्लोज, या कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लोज फॉर इट्स मीनिंग। सो अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं वेयर इज माई बैग, तब ये सिर्फ एक क्लोज था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता। इफ आई से वेयर इज माई बैग, ओनली दिस सेंटेंस, इसका मतलब था कि इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, एंड बिकॉज इट बिगन विद द डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स, और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोज था, दैट इज अ डिपेंडेंट क्लोज। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास आई नो एक दूसरा क्लोज है जो इंडिपेंडेंट क्लोज है। वेयर इज माई बैग, ये डिपेंड करता है आई नो पे, तभी इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज। और पूरे सेंटेंस को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बिकॉज वी यूज द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वियर। जो वियर है यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिर है ही हु राइट्स अ बुक इज माई ब्रदर, ठीक है। अब ही क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन इसका प्रेडिकेट कहाँ है, प्रेडिकेट यहाँ इज माई ब्रदर, लाइक ही इज माई ब्रदर हु राइट्स अ बुक, लेकिन हम ही के बाद हम कॉमा दे करके यस वी कैन बिगिन अ सबऑर्डिनेट क्लोज। अब लिखा हु राइट्स अ बुक, ये जो यहां तक क्लोज है इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, या कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज। किस पे डिपेंड है, ही इज माई ब्रदर, ठीक है। ही इज माई ब्रदर क्या ये पूरा प्रिंसिपल क्लोज है, और हु राइट्स अ बुक इट इज अ डिपेंडेंट क्लोज। नेक्स्ट इज आई विल वेट हियर इफ यू कम ऑन द टाइम। अब लिखा आई विल वेट हियर, ये क्या है आपका प्रिंसिपल क्लोज है, या कह सकते हैं मेन क्लोज है, या इंडिपेंडेंट क्लोज है। एंड इफ यू कम ऑन द टाइम, ये यहां से यहां तक क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि इफ जो है इट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसी तरीके से ये है आई हर्ड दैट ही इज कमिंग टुमारो। तो आई हर्ड जो है इट इज प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, और दैट ही इज कमिंग टुमारो ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, बिकॉज आई यूज्ड subordinate conjunction that to join independent to dependent and dependent to independent clause. Last is complex compound, or you can say compound complex sentence. अब ये कॉम्प्लेक्स भी है, कंपाउंड भी है, या कह सकते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों है। जैसे कंपाउंड में क्या था, वन टू, इट मींस बोथ इंडिपेंडेंट क्लोजेस। कॉम्प्लेक्स में वन इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड डिपेंडेंट। इसमें क्या है, इन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मींस टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, बिकॉज कंपाउंड है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लोज। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कितने क्लोजेस हैं। अगर उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं और एक डिपेंडेंट है, तब भी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इफ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस है एंड टू डिपेंडेंट क्लोजेस है, तब भी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही कहलाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ही राइड्स अ कार एंड वॉशेज इट बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। अब देखिए कितने क्लोज इसमें है, ही राइड्स अ कार, वॉशेज इट, इट इज वेरी कॉस्टली। हमारे पास तीन क्लोजेस हैं, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि तीनों क्लोजेस में इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है एंड डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है। ये देखिए, ही राइड्स अ कार, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। ही वॉशेज इट, इट स्टैंड फॉर कार, और ही वॉशेज द कार, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। इट इज वेरी कॉस्टली, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लोज, बिकॉज ये आ रहा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो है बिकॉज। बिकॉज क्या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद जो क्लोज स्टार्ट हो रहा है उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज। अब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, ही राइड्स अ कार इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वॉशेस इट अगेन इट इज इंडिपेंडेंट क्लोज। इट इज वेरी कॉस्टली, दैट इज अ डिपेंडेंट क्लोज, यू कैन से इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लोज जो टू इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज यू नो मी सो यू इनवाइटेड हिम हु वाज माय बेस्ट फ्रेंड। अब you know me, it is one independent clause. You invited him, it is second independent clause. And who was my best friend, ये है आपका subordinate clause, या कह सकते हैं dependent clause। तो इसमें दो independent थे, और दोनों independent clause किससे joined थे, we have used one coordinate conjunction so क्या है, coordinate conjunction है जो दो independent clause को join करता है, और जो subordinate clause है was my best friend जो joined है with the help of सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हु। लास्ट एग्जांपल है
He worked hard, comma, yet he failed in the exam because he did not write correct answers. अब इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि he worked hard. Number one, it is independent clause. He failed in the exam. Second independent clause because it is attached, joined with the help of yet, that is coordinating conjunction. ये दोनों independent clause हैं जो independent है. Independent in the sense of meaning. Independent means it has its own subject and predicate. लेकिन इसके बाद जो है बिकॉज ही डिड नॉट राइट करेक्ट आंसर्स. अब बिकॉज क्या है हमारे पास, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और इसके आगे जो क्लोज है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज या कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. बहुत आसान है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए. इसमें दो क्लोज इंडिपेंडेंट होते हैं, एक या एक से ज्यादा जो है डिपेंडेंट क्लोज होता है. ठीक है, कंपाउंड में क्या है कि दोनों क्लोज इंडिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट मींस इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. कॉम्प्लेक्स में क्या है कि एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होता है. ठीक है, और सिंपल मींस ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज, देयर इज नो डिपेंडेंट क्लोज इन सिंपल सेंटेंस. सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द sentences. So I hope you understood the content of this video very well. We have discussed about the functions of sentences, declarative sentence, or you can say assertive sentence. We have understood the interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. ये four हैं functions of sentences हैं. Yes, and four जो structure of sentences से we discussed the simple sentence, compound sentence, complex sentence, and complex compound or compound complex sentence. So I hope you understood very well about the functions and structure of sentences. If you have any doubt still, please ask me, tell me in the comment box, and it is my request to like it, share it, and the video, and subscribe my channel.